Let's roll it. You do not need to explain yourself to everybody. Sit with your thoughts, sit with your thoughts, sit with your thoughts. इसके पीछे पड़ी थी मैं, इसके लिए रोई थी मैं 3 साल पहले. हाय गाइस, हैप्पी संडे. आई होप यू डूइंग वेल. आपके पास वैसे वीडियो ट्यूसडे को आएगा, बट नो वरीज. हैप्पी संडे. आई प्रे आप सबका संडे बहुत अच्छा गया होगा. एंड दिस इज माय लिटिल लव लेटर टू यू गाइस. मैं इसमें कुछ प्यारी प्यारी सी एडवाइजेस देना चाहूँगी जो मैं अभी सीख रही हूँ. एंड I am someone who is very observant. I'm someone who reads. I'm someone who wants to talk to people from every age group. एंड कहीं भी बैठती हूँ तो बातें करने लग जाती हूँ लोगों से, टू सी देयर पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ. तो वो सारी चीज़ें हैं, तो उसमें से कुछ छांट के मैंने आज 12 लिखी हैं जो मेरे दिमाग में सबसे पहले आई थी. 12 या 14 आई थिंक. सो वो सारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. एंड आई होप यू लव दिस वीडियो. कीप वॉचिंग. I've grabbed my coffee, I've grabbed my makeup stuff, and today we're going to get ready while I tell you some things that I'm learning in my 20s. Let's get started. I'm so excited for this. So first of all, I'm 23, so it's I believe I'm eligible for sharing stuff that I'm learning lately because teenage कब गया बिल्कुल आइडिया नहीं लगा. फर्स्ट ऑफ ऑल कोविड वाज सच अ ह्यूज डिजास्टर. ऐसा लग रहा है उसके बाद से द टाइम हैज स्टार्टेड टू गो इन अ ब्लिंक. तो मतलब ऐसे इट इट पासेस बाय इन अ ब्लिंक. या मतलब मेरा टीनेज जो था मोस्टली कोविड के टाइम पे निकल गया. एंड आई डिडंट इवन रियलाइज व्हेन आई क्रॉस्ड 19, 18, 20. इवन आई डोंट रिमेंबर 21 से मुझे थोड़ा थोड़ा सा ब्लर याद है कि अच्छा ऐसा 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 हुआ था, सिचुएशन ऐसा था. बट राइट नाउ आई एम 23 एंड आई want to share a few things with you guys. So first of all, I believe that you guys are either in your teenage who watch me, or you're my age probably, or some are elder than me. So I like to share some things that I am learning lately. And because मैं बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ, मैंने सब कुछ लिख लिया है. ऑल्दो मैंने खुद ही लिखा है, बट स्टिल मैंने लिख के रखा है अपनी डायरी में, सो दैट आई कैन रीड एंड टेल यू वन बाय वन. एंड मुझे हेयर कट के लिए जाना है आफ्टर अ वाइल. मेरी जो बैंग्स हैं, लेयर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं. यू कैन सी यहाँ तक आ गए हैं. तो मुझे इनको फ्रेम कराना है. एंड फॉर दैट आई गेट रेडी विद यू गाइज. आप मेरा मेकअप रूटीन भी देख सकते हो. एक गेट रेडी विद मी भी हो जाएगा. एंड आई शेयर द थिंग्स दैट आई would want you guys to also take away from the video, I guess. Let's get started. So, पहले लेसन से स्टार्ट करते हैं, then I'll get ready. So first things first, you don't have to have your life figured out right now. No one has it figured out. मतलब I have realized it the hard way because I'm someone जिसे बहुत ज़्यादा फोमो रहता है चीज़ों का. I want to try everything that comes my way, be it singing, be it dancing, be it content creation, be it coding, इतना कुछ. And I've been like this since I was a kid. This kind of personality is a blessing and comes with it its own set of cons. Because see, being a jack of all trades is all fun until you start to feel it in to such a core that आपको नींद नहीं आती है. You feel like time is passing by and you don't have enough time. You have a lot of things in your list. You have to do a lot of things. You have a lot of things in your bucket list. इतना सब कुछ सोचने के बाद आपको रियलाइज मतलब आप you get overwhelmed with those thoughts. So the lesson that I'm learning lately, that I've learned lately, is you should not rush things. Everything will come in its own timeline. And I wish I knew this earlier, that everything will happen when it is supposed to happen. You will pass your 12th grade, you will get graduated, you will get that job, you will get married, you will find that partner, you will have kids, you will get older. Everything has to happen anyway. So why stress it so much when you have a lot of things to worry about? And
अगर आपको ऐसा लगता है ना कि टाइम बहुत जल्दी पास हो रहा है, यू लेस टाइम, ट्रस्ट मी, यू आर द वन लिविंग, क्योंकि लोगों का टाइम नहीं पास होता. पीपल sit at homes, they get bored, they don't know what to do with their life. उससे better है the fear of time passing, बिकॉज यू आर एक्चुअली लिविंग. क्योंकि जो जी रहा होता है ना, उसे डर होता है कि टाइम कम है. आपको टाइम की कमी कब महसूस होती है? व्हेन यू आर विद योर लव्ड वन, और व्हेन यू आर हैविंग अ फेवरेट मील आपको, और व्हेन यू आर वाचिंग अ फेवरेट मूवी. जब कुछ अच्छा कर रहे होते हो ना जिंदगी में, तब आपको ऐसा फील होता है दैट हाँ, टाइम बहुत जल्दी पास हो रहा है. तो इफ यू फीलिंग दिस, इट्स गुड साइन. बट you should not overthink it. You don't have to have everything figured out right now. Live and work and give your best. Everything will happen at its own time. So यही है यार, पहला लेसन तो मेरा कि आपको अगर रश रहता है इस चीज़ का कि यार टाइम इज़ पासिंग टू क्विक, या मैं पीछे ना रह जाऊँ, या सब कोई लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, आई एम द वन लेफ्ट बिहाइंड, इफ़ यू फील लाइक दिस, इट्स ऑल राइट. ऐसा फील होना इज़ वेरी नॉर्मल. एंड इसके साथ अगर मैं अपना दूसरा लेसन जोड़ूँ तो ये है दैट सम डेज यू कॉन्फिडेंट एंड सम डेज यू जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन. बिकॉज हर रोज़ आपकी एनर्जी सेम नहीं हो सकती. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट कॉन्फिडेंस इज नोबडी नोज इफ इट इज़ फेक. तो हाँ, ज़रूरी नहीं है आप हर रोज़ सेम कॉन्फिडेंस के साथ यू शो अप टू वर्क, you show up to your family, you show up to your loved ones. There are times when you're not feeling good, there are times when you're overthinking, and it's all right. It's very human to feel that. We are not robots. हम लोग हर रोज़ सेम एनर्जी के साथ शो अप नहीं कर सकते. हम लोग हर रोज़ सेम एनर्जी के साथ किसी से बातें नहीं कर सकते, या किसी के साथ रह नहीं सकते, and which is very normal. So I think we women especially, we should learn the fact that it's not always the same, the energy is not always the same. And one more thing that I've all noticed many a times is, ये हमारा थर्ड लेसन हो सकता है. मैं अब बुक से देख भी नहीं रही, मैं अपना रैंडम बता रही हूँ जैसे जैसे मुझे याद आ रहा है. इट्स लाइक हम, फॉर अस women ना, आई जस्ट विश आई न्यू दिस अर्लियर दैट हम विमेन अपना मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम गुस्से में होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, या अपना कोई पॉइंट प्रूव करना चाह रहे होते हैं, तो हम लोगों ने ना आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दी है, टेलिंग पीपल दैट इट्स आर hormones, और वी आर इन दैट फेज ऑफ द मंथ जब हम ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं. डोंट टेक दिस सीरियसली. अगर हम ही अपने इमोशंस को हार्मोनल इम्बैलेंस का एक एक लेबल लगा देते हैं कि दिस इज़ द रीज़न आई एम फीलिंग दैट वे, तो मुझे सीरियस मत लो, दिस इज़ जस्ट अ फेज, लोग भी नहीं लेंगे. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट men or anybody for that matter to take you seriously when you yourself are the one who is saying कि this is just my hormones and nothing much. आई थिंक वी women should stop this. दिस इज़ द हाई टाइम. मैंने बहुत ज़्यादा देख लिया. इनफैक्ट बीच में मैं खुद ऐसा करने लग गई थी कि इफ़ आई फील इफ़ आई फील सैड, आई चेक माई फोन एंड आई एम लाइक, ओ या दिस फेज इज गोइंग ऑन, शायद इस वजह से मुझे ऐसा फील. नहीं यार, you're human, you see things, see through things, you realize things, and if you put up a point, it's not always about your hormones. कई बार genuinely भी आप कुछ सोच सकते हो, ठीक है? तो वो है, खुद को अगर आप सीरियस नहीं लोगे, nobody else is going to take you serious. Some people are just not meant to stay. It can be about friendships, it can be about relationships, and it's very real that you do outgrow people, uh, and it's just very normal, and you cannot sit thinking about them or the memories every day. It's not just right, because I am learning this the hard way that life में, no matter what happens, the only person that is going to stay with you is your own self. Okay, everybody can go any moment. The minute you have a sense of attachment from anyone,
be it your pet for that matter. You should be prepared for the fact that anyone can leave you any point of time. So you outgrow people, you outgrow places. The only thing that you're left with is the memories, and it is very human to sometimes feel sad about those things, but you cannot stop living. This is your life, you just got one life, and you cannot not give the this precious gift in somebody else's hands. Okay, so yes, people can leave you. It's the probability of someone leaving you is literally one. So be prepared for it. So if there is one reason to be sad, there are a thousand to be happy. I think people who are in their late teens, especially, our emotions are very high during those times. We feel everything with the you know with abundant emotion, with so much depth. We feel everything with so much depth, be it anger, frustration, love, anxiety, emotional baggage, be it the career pressure. We feel everything to its core when we are in our late teens and we are just entering adulthood. Things hit us hard, and adulthood hits you hard when you are, I think, 21 and 22. So आपको ये चीज़ समझनी होगी that the only person that you're going to have in the long run is your own self, no matter what. And I read this quote that you might have 100 problems until you get a health issue. That means the minute you get a health issue, you will realize that every other problem was secondary, and the only thing that you should have focused is your health. So please, क्योंकि अगर आपको अल्टीमेटली लाइफ में किसी के साथ रहना है, so that's your own self. Please, for God's sake, for your own good, please focus on your health. And these are the years. And I'm not saying कि junk खाना छोड़ दो, stop eating your favorite food. No, I think life is too short to not enjoy eating what you love to, and you are too young to compromise on food. Eat everything you like, लेकिन एक बैलेंस बना के, मतलब अगर आपको कुछ जंक खाना है खाओ, बट उसके बाद उसको कंपनसेट करने की भी कोशिश करो. ऐसा नहीं कि जंक ही खाते रहो, हेल्दी खाओ. या ट्रस्ट में हेल्दी खाना बहुत टेस्टी होता है वंस यू गेट इनटू इट. 100 डिशेज आई कैन नेम यू राइट नाउ जो आप अपने ब्रेकफास्ट के लिए खा सकते हो, अपने लंच के लिए खा सकते हो, डिनर के लिए खा सकते हो. लव इट. हेल्दी खाना खराब होता है टेस्ट में, ये मुझे नहीं पता कौन कहता है, मैं नहीं मानती. So focus on your health. And yeah, that was another lesson that I'm learning, and I would like you guys to start either going to gym or work out or go for a walk. Yeah, the uh, walks are very therapeutic. बहुत ज़्यादा therapeutic होती हैं walks. Go for walks. If you don't want to go alone, take your mom along. उनको भी walk करने की ज़रूरत है. हम इंडियन, हमारी जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं, they avoid going to walks, they avoid working out. हम उनको कितना बोलते हैं. So yeah, मतलब go for a walk. अगर आपको कुछ नहीं करना है तो walk करो. Walking is a therapy for me. So yes, focus on your health. The next thing that I'll use is this Etude water tint. By the way, मुझे ऐसा कुछ heavy नहीं करना है आज, बहुत basic सा. The fourth thing is, fourth, मतलब the next thing is, हाँ, yeah, this is very important. You should know yourself, like literally know yourself. What do I mean by knowing yourself? First of all, ओके, जब आप किसी भी तरह के रिलेशनशिप में होते हो या मैरिज में होते हो, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस जनरेशन या पिछली जनरेशन की मैं बात करूँ तो दे डोंट इवन नो देमसेल्व्स. अगर मैं आपसे पूछूँ क्या आपको पता है आपको क्या चीज़ अपसेट करती है? क्या आप खुद के साथ कभी बैठे हो एंड आपने एनालिसिस किया है कि यार आई डोंट लाइक पीपल हु टॉक लाइक दिस, या जैसे मैं अपना बताती हूँ, आई हेट पीपल हु लाई.
तो इफ़ यू लाई इन फ्रंट ऑफ मी एक बार तो मतलब मेरा आपसे हो गया है। सो आई एम लाइक दिस। तो आप जैसे मैं जिस इस डायरी में ना मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको भी एक चीज़ दिखाती हूँ। फ्यू डेज़ बैक मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, पता नहीं किस चीज़ से। तो आई सैट विद माई सेल्फ एंड मैंने खुद को आई थिंक 2 घंटे में खुद के साथ बैठी होंगी। एंड यहाँ से शुरू है, आई कैन लिटरली शो यू। यहाँ से शुरू है 1 2 3 4 5 6 7 पेजेस का मैंने एक एनालिसिस किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऊपर हेडिंग लिखी हुई है, दिस फाइनल एक्शन, विच मीन्स अब मुझे क्या करना है। ये मैंने एक्टिविटी की थी उस दिन, आई थिंक 1.5 से 2 घंटे की एक्टिविटी थी, जस्ट टू एनालाइज कि चल क्या रहा है, सॉर्ट क्या करना है मुझे इस वक्त, और मेरी प्रायोरिटी इस वक्त क्या है। मतलब दिस इज माई टेक ऑन दिस कि अगर आप अपसेट हो किसी चीज़ से या आप कुछ सोच रहे हो, एटलीस्ट सिट विद योर सेल्फ। मतलब मैंने तो एक मंत्रा बना रखा है कि अगर मुझे कभी भी ऐसा लग रहा होता है ना दैट आई एम ओवर थिंकिंग, आई एम नॉट ऑल राइट, आई डोंट नो व्हाट टू डू, द ओनली थिंग दैट आई टेल माई सेल्फ इज सिट विद योर थॉट्स, सिट विद योर थॉट्स, सिट विद योर थॉट्स। दिस इज द ओनली थिंग दैट आई हैव लर्नड इन द लॉन्ग रन। ये एक चीज़ है जो मैं सबको बोलना चाहूँगी कि कुछ भी लगता है ना, खुद के साथ बैठो। तो जब मैंने लेसन शेयर किया था ना दैट यू शुड नो योरसेल्फ, इससे मेरा मतलब था आपको पता होना चाहिए आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, आप क्या चाहते हो, आप क्या नहीं चाहते, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। जब आपके दिमाग में खुद के बारे में क्लैरिटी नहीं है, हाउ कैन यू इवन लव समबडी एल्स। अगर आप खुद से प्यार नहीं कर सकते, आप किसी से प्यार नहीं कर सकते। सो यस, लव योर सेल्फ, talk to yourself, अपने साथ बैठो, sit with your thoughts, sit with your uh, you know when you're overthinking, sit with yourself, write it down, analyze it, अपनी प्रायोरिटी सेट करो। ये एक छोटी सी एक्टिविटी होती है, आपको 10 चीज़ें लिखनी होती है जिस बारे में आप अभी सोच रहे हो। उन 10 में से आपको 3 चीज़ें प्रायोरिटाइज करनी होती है कि अभी मेरी प्रायोरिटी है। फिर उन तीनों में से आपको टॉप प्रायोरिटी निकालनी होती है, उसको आपको ज़्यादा टाइम देना होता है, सेकेंड प्रायोरिटी को थोड़ा कम, थर्ड प्रायोरिटी को थोड़ा कम। The next thing is, most things you stress about don't even matter a week later. इसको हम समराइज कर सकते हैं चार्ली चैपलिन के एक कोट से। ही सेज लाइफ इज अ ट्रेजेडी व्हेन लुक्ड अप क्लोज एंड अ कॉमेडी इन अ लॉन्ग शॉट। मतलब जब आप सिचुएशन को जूम इन करके देखते हो ना, फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल उठाते हैं, यू आर इन अ रिलेशनशिप एंड समबडी चीटेड ऑन यू। जब आप उसको ज़ूम करके अप क्लोज देखते हो ना, ये ट्रेजेडी है भाई। आप बहुत ज़्यादा रोते हो, आप यू लूज योर सेल्फ, 2 3 महीने तो समझो गए, राइट। एंड वेन यू लुक एट इट 5 years डाउन द लाइन, थोड़ा सिचुएशन को जूम आउट करके देखते हो तो इट लुक्स लाइक अ कॉमेडी टू यू। मैं लिटरली देखा है पीपल लाफ एट देमसेल्व्स कि इसके पीछे पड़ी थी मैं, इसके लिए रोई थी मैं 3 साल पहले। तो आप अप क्लोज जब देखते हो ज़रूर आपको ट्रेजेडी लग रहा होता है, जब आप ज़ूम आउट करके देखते हो कॉमेडी होता है। मतलब आप जिन चीज़ों के बारे में इस वक्त स्ट्रेस ले रहे हो, शायद एक हफ्ते बाद आपको याद भी नहीं होगा कि पिछले मंगलवार मैं इस बात से स्ट्रेस्ड थी दैट आई एम नॉट गेटिंग माई पीरियड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम सिचुएशन में जब घुस के उसको एनालाइज करते हैं तो बहुत दुख हो रहा होता है, एंड विच इज़ वेरी ह्यूमन टू फील सो। बट जब आप किसी सिचुएशन में हो ना, तो हमेशा हमेशा खुद से ये पूछना कि क्या एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद मेरे लिए मैटर कर रहा होगा। जो चीज़ जितनी ज़्यादा मैटर कर रही होगी उसे उतनी ही इम्पोर्टेंस उस वक्त पे देना। 3 महीने 4 महीने रोते रहो, बैठे रहो, डिप्रेशन में रहो, जॉब छूट गई है, आप 4 महीनों तक जॉब छूट गई है, आप 4 महीनों तक एक कमरे में बंद होके बैठे हो कि आई डोंट हैव अ जॉब, व्हाट शुड आई। ब्रो, गेट अ जॉब। अगर आपके पास जॉब नहीं है, गेट अ जॉब। मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रॉब्लम हम यहाँ बना रहे होते हैं, होती नहीं है। जो चीज़ है उसका सोल्यूशन सीधा है ना, गेट अ जॉब, फाइंड इट। नहीं लग रही तो क्या हो गया भाई, लग जाएगी।
दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एवरीथिंग हैपेंस एट इट्स ओन टाइमलाइन। किसी चीज में इतना घुस के सैड होके बैठने की जरूरत नहीं है। डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली बट टेक इट सीरियसली। सो माई कितने हो गए हैं, आई हैव लॉस्ट काउंट, बट आई थिंक 5 मैंने बता दिए। क्या मुझे 10 बताने हैं? मैं लिख लिया, मैं सारे शेयर करने की कोशिश करूंगी, बट मैं थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में चली जाती हूँ तो इट्स गेटिंग अ लिटिल लॉन्गर. So the next lesson that I'm learning is clarity comes after action, not before. Which means सिर्फ बैठ के ओवर थिंक करना कि मुझे ये भी करना है, मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है, मुझे अब करना है, या मैं 2 महीने बाद करूँगी. क्लैरिटी ऐसे नहीं आती है कि मेरे को एक स्पेसिफिक टाइम होगा ना तब जाके नई चीज़ करूँगी. क्लैरिटी आती है व्हेन यू स्टार्ट. आप सेवेंथ या एट्थ स्टेप के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो सकते जब तक आप सिक्स्थ या फिफ्थ स्टेप तक ना पहुँचो. ऑल आई मीन टू से इज गेट स्टार्टेड. It is very human to be new at something and not know everything. आप किसी चीज़ में नए हो, जैसे मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है तो ऑब्वियसली आई एम नॉट दैट गुड एट एडिटिंग, या मुझे नहीं पता एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट, बट आई एम लर्निंग, आई एम एंजॉइंग द प्रोसेस एंड आई एम लर्निंग इट अलोंग. तो एडिटिंग भी आप सीख जाओगे. आप अपनी 10 वीडियोस के बाद जब आपकी 11th वीडियो आएगी ना, शायद तब आप एडिटिंग सीखोगे. सिमिलरली आप uh, ये नहीं कह सकते कि यार मुझे, मेरे साथ एक चीज़ थी, बीइंग अ परफेक्शनिस्ट, ये एक कौन होता है बहुत बड़ा कि आप ना एक वीडियो को 100 बार एडिट करते हो. मतलब वो एक स्पेसिफिक शॉट आना चाहिए वरना वीडियो ही नहीं आता. मतलब आई हैव लिटरली मेनी वीडियोज इन माई ड्राफ्ट्स जो मैंने अभी तक अपलोड नहीं की जस्ट बिकॉज आई डिड नॉट फील दे वर अप टू द मार्क. बट द आइडिया इज, मार्क क्या है? व्हाट इज दैट मार्क फॉर यू? हम अपने दिमाग में चीज़ें बना के बैठे होते हैं एंड पीपल लिटरली दीज डेज they love the rawness of people. They love their authenticity and the way they naturally are. ठीक है? तो वही चीज़ है. मतलब you don't have to be good at something when you're beginning. ठीक है? You can be a beginner, you are new at something and it's very obvious to not know everything. So yes, do not थिंक लो ऑफ योर सेल्फ. कभी भी खुद के बारे में ऐसा लो मत सोचो कि यार आई एम अ बिगिनर, मुझे नहीं आता, मेरा एडिटिंग खराब है, यार ज़ीरो से शुरू करूँगा. The next lesson is being nice and being available are two different things. अब मैं बताती हूँ अपना सिचुएशन. मैंने अपनी सारी लाइफ, these 23 years of my life, I have realized that आई एम अ पीपल प्लीजर. और आपको पता होगा पीपल प्लीजर कितने खराब होते हैं. वो किसी दूसरे को बुरा नहीं लगने दे सकते एंड दे विल बी रेडी टू टेक द बुलेट्स इन देमसेल्व्स. तो मैंने अभी आई लर्न दिस द हार्ड वे दैट यू that you do not need to explain yourself to everybody. आप जो कर रहे हो वो आपकी लाइफ है, आप किसी ना किसी थॉट के साथ कर रहे हो. एज लॉन्ग एज यू आर नॉट हर्टिंग एनीबडी एल्स इंटेंशनली, आपको किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है. आपको किसी के लिए 24/7 अवेलेबल रहने की ज़रूरत नहीं है अगर वो आपके लिए रहने को तैयार नहीं है तो. ठीक है? Being a good person and being available all the time are two completely different things. इनको मिक्स मत करना. किसी के लिए अच्छा रहो, सबके लिए अच्छे रहो, वेरी गुड. किसी को हर्ट मत करो, वेरी गुड. लेकिन किसी के लिए ऐसा रग मत बनो. नेक्स्ट लेसन, एज अ वुमन, ये इसमें लिखा नहीं हुआ बट मुझे भी याद आ गया था बिकॉज आई बिलीव मोस्टली women are watching my videos. So for women, the next lesson is for them. You do not have to lose your empathetic side, your womanly side, just to, you know, be heard. We are women. हमारा जो नेचर है, it's nurturing, it's sweet, it's soft, it's very feminine. तो आपको अपने वो feminine features, वो feminine qualities को दबाने की ज़रूरत नहीं है, just to be heard. आपको नहीं पता ये being feminine is such a power in itself कि आप most of the debates सिर्फ soft spoken और
गुड थॉट प्रोसेस के साथ जीत सकते हो। तो यू डू नॉट हैव टू लूज योर फेमिनिन साइड जस्ट टू बी हर्ड और टू स्टैंड आउट। मैं बताती हूँ अपना रियल सिचुएशन। आई एम इन टेक, आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, इन माई एंटायर टीम आई एम द ओनली वुमन। तो and honestly, I have felt this that people are not ready to accept the fact that women can code well or women can lead well. So, what I have learned in the past few months is the fact that you do not have to become like men to be accepted by men. पहली बात, मुझे उनसे accept होना क्यों है? दूसरी बात, if मैं वहाँ पे उनसे अच्छा कर रही हूँ, you not realize it, but you don't have to lose your own self just to be accepted by somebody else. ठीक है? So yes, you can lead well, you can ace in any field you go to without adapting their features and behaviors. The next and final lesson is take that step and trust your decision. मतलब सो देखो, आई नो वन थिंग दैट सबका लाइफ का सिचुएशन सेम नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग अभी मुझे इस वक्त ऐसे देख रहे होंगे जिनके लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस शायद किसी और ने लिए हैं, उनने नहीं लिए। बट मेरे पेरेंट्स टचवुड दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी सपोर्टिव, उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। आई डिड वॉट एवर आई वॉन्टेड टू डू। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद वो स्ट्रीम्स ली जो वो नहीं लेना चाहते थे, जो शायद अब वो करें जो वो नहीं करना चाहते थे, जो शायद काम नहीं करे, वर्किंग नहीं है बिकॉज देयर पेरेंट्स डोंट वांट देम टू। आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट if you die today, people will forget you in 30 days. ये भी मैंने बहुत ज़्यादा बताया है। लिटरली 15 दिन बाद सबकी ज़िंदगी लाइफ एकदम नॉर्मल हो जाती है। यू डोंट इवन एग्जिस्ट। एंड एक सैड ट्रूथ बताऊँ, people don't even carry your photographs in their wallets because they think that you don't keep somebody's photograph who is dead with you. एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा थॉट लगता है, इतनी जल्दी, like how can you forget someone, how can you even not keep their existence of thoughts with you when even when they're gone, जिसने आपके साथ सारी ज़िंदगी शायद बिताई हो। तो सिंपल सा फैक्ट है, मैं ये नहीं बोल रही घर से भाग जाओ तो बहुत अच्छा है, बट मैं ये नहीं बोल रही घर से भाग जाओ। आई एम ट्राइंग टू से इज फाइट फॉर योर सेल्फ। अगर लोग आपको इतनी जल्दी भूल सकते हैं तो आप किन लोगों के लिए इतना सब कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हो? सिंपल है, बहुत लॉजिकल सा है। मतलब मैं ऐसा कुछ वेंट नहीं कर रही हूँ या फिर मैं ऐसा कुछ प्रीच नहीं कर रही हूँ, बट द आइडिया इज़ वेरी सिंपल दैट डोंट लूज योर सेल्फ इन एनी रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट योर ओन डिसीजंस। कई बार आप चीज़ें करते हो, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ व्हेन यू गिविंग 100% इट विल पे ऑफ। नहीं करता यार, लोगों को नहीं मिलते रिजल्ट। ठीक है, आज नहीं तो 5 साल बाद। एंड एज लॉन्ग एज यूर लविंग वॉट यूर डूइंग, कोई चीज़ अगर आप ऐसी कर रहे हो जो आपको पसंद है, तो मुझे लगता है रिजल्ट्स के लिए भी वरी नहीं करना चाहिए। तो मैंने शुरू में बोला था कि यू गेट दैट जॉब, यू ग्रेजुएट, यू गेट मैरिड, यू फाइंड द पार्टनर, सब हो जाता है अपने टाइम पे यार। एंड यू स्टिल फील समथिंग मिसिंग। वो क्या होता है? दैट यू नॉट फाउंड योर सेल्फ, यू नॉट फाउंड वॉट यू वॉन्ट टू डू। इसीलिए आपको ऐसा अधूरा अधूरा सा फील होता है। तो वो फोमो इज़ वेरी रियल इफ़ यू आर नॉट डूइंग समथिंग दैट यू वॉन्टेड टू डू एवर सिंस यू वर अ किड। अब हम करेंगे ज्वेलरी। I'm thinking to take this bag with me today. Take this bag, and I'll wear my favorite loose fit jeans. यहाँ पे it's getting very humid here. बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी सी हो रही है। एंड शायद मैं ग्लॉस लगाना चाहूँगी आज, नॉट श्योर दो, थोड़ा थोड़ा सा लगा लेते हैं। It's fine. It's fine. This is how the makeup looks. बहुत सिंपल सा है, बहुत बेसिक सा है। वैसे ही 5 मिनट हो जाता है, मैं बातें करती रह गई। एंड अब हम थोड़ी सी ज्वेलरी पहनेंगे। बाल तो मुझे आज सेट करवाने हैं। एंड आई अटैच अ पिक्चर आफ्टर द हेयर कट, मुझे बताना कैसा लग रहा है अगर मैं आज जा पाई तो, अगर बारिश नहीं हुई तो। आई विल वेयर दिस रिंग। मुझे स्टैक नहीं बनाना है आज,
And for earrings, I think I would go with these golden hoops. Yeah, I think they're looking nice. Now I'll quickly go for my haircut. मुझे फ्रेमिंग करानी है बैंग्स की, एंड देन आई अटैच अ वीडियो एंड मुझे बताना मुझ पे कैसा लग रहा है अगर मैं जा पाई तो. और इट्स गेटिंग रेनी थोड़ा सा, तो अगर बारिश नहीं होती है तो आई डेफिनेटली गो, अदरवाइज मैं मूड होके बैठ जाऊँगी. So yeah guys, that was a not so little love letter from me to you guys. It was a collection of things that I'm learning lately, and I want you guys to, I know most of you will resonate to at least 2 or 3 thoughts, and ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है when you growing, and जब आप adulthood में होते हो you learn a lot of things. Take a note of them, and मेरा टेक इस पे यही रहेगा दैट लर्न एज मच एज यू कैन. हर एज के बंदे से कुछ ना कुछ सीखने को आपको ज़रूर मिलता है लाइफ में, एंड लाइफ को इतना सीरियसली मत लो. इतना सीरियसली लाइफ को जितना लाइट लोगे यू विल फील हैप्पियर. कुछ नहीं मिलता है ना ज़िंदगी में, तो कुछ मत करो. जिस दिन आप कुछ नहीं करते हो उस दिन आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करो. ये भी बहुत प्रोडक्टिव चीज़ होती है करने के लिए. सो मुझे लगता है लविंग लाइफ इज़ द ओनली एडवाइस दैट यू कैन टेक अवे यहाँ से. सबसे पहले देयर आर 1000 रीजंस टू बी हैप्पी इफ देयर इज़ वन रीजन टू बी सैड. सो बी हैप्पी, फोकस ऑन योर हेल्थ. बहुत ज़रूरी है खुद की हेल्थ पे फोकस करना, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर द वन स्टेइंग विद योर सेल्फ. सो अपना ध्यान रखो. This is all I wanted to say. Keep spreading love, and if you have any other questions drop it in the comment section. You guys love the makeup haul, and I know मैंने बोला था मैं स्टाइलिंग वीडियो लाऊंगी, लेकिन मैंने एक पोल किया था एंड उस पोल के हिसाब से आप लोगों ने सिलेक्ट किया है कि मैं ये बनाऊं. मुझे बताओ मुझे नेक्स्ट वीडियो क्या बनाना चाहिए, आप क्या देखना चाहोगे. आई थिंक स्टाइलिंग रिलेटेड होगा, तो वो भी मैं बताऊंगी. एंड मैं आई थिंक कुछ ब्लॉग भी करने का कोशिश करूंगी. सो आई डेफिनेटली शेयर एवरीथिंग विद यू गाइज, एंड आई होप you loved this video. Let me know how did you like it. Let me know क्या आपको ऐसे sit down videos पसंद हैं जिसमें मैं कुछ शेयर करूँ, and let me know what should I create next. और मुझे ये बताओ कहाँ से देख रहे हो. Bye bye, take care, lots of love.